So this is part 6 of chapter determinant. Now in this part we will discuss about some more property of a determinant. In the previous part we have discussed 5 properties. Now in this part we are going to discuss 2 more properties, and these 2 properties are very important for question. So let's write property 6, sum or splitting property. Sum or splitting property. Now suppose term of any row. Suppose element of any row. Suppose element of any row is in some form. Is sum of 2 or more terms. If elements of any row is sum of 2 or more terms, then determinant also can be splitted or expressed as sum of 2 or more determinant. So let us see with the help of example what I am trying to say. Example: determinant a1 plus lambda 1, b1 plus lambda 2, c1 plus lambda 3, a2 b2 c2, a3 b3 c3. Now suppose this is the given determinant, in which the first row, the element of first row are in some form. You can see the elements of first row. Clear? This is first element a1 plus lambda 1. It is in some form. This is also in some form. This is also in some form. So if elements of any row is in sum of 2 or more terms, here each element is sum of 2 terms. So determinant also can be expressed as a sum of 2 or more determinant. यहाँ पर इस फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट 2 टर्म के सम के रूप में है, तो आप डिटरमिनेंट को भी 2 डिटरमिनेंट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो. कैसे? डिटरमिनेंट ना फर्स्ट रो में आप हर एक एलिमेंट का फर्स्ट टर्म लिखो, a1 b1 c1, and second row and third row copy as it is, a2 b2 c2, a3 b3 c3, then plus. Now in the second determinant, clear, write the second term of each element as first row, l1 lambda 1 lambda 2 lambda 3. हर एक एलिमेंट का जो सेकेंड टर्म है उसको आप यहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट बना दो, एंड कॉपी द सेकेंड रो एंड थर्ड रो एज इट इज, a2 b2 c2, a3 b3 c3. सो अगर किसी रो का
एलिमेंट्स अगर सम के फॉर्म में है तो आप डिटर्मिनेंट को भी सम के फॉर्म में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर? These two are called splitted determinant. These two are called splitted determinant. So these two are called splitted determinant. So आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप डिटर्मिनेंट को दो या उससे अधिक डिटर्मिनेंट में आप स्प्लिट कर सकते हो। बट अब ध्यान देना है कि स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी आप तभी यूज करो जब आपको ऐसा लगे कि स्प्लिट करने के बाद जो स्प्लिटेड डिटर्मिनेंट है वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के कंपैरिजन में इजी हो, कैलकुलेट करने में हो, तभी आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। अगर स्प्लिटेड डिटर्मिनेंट ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के कंपैरिजन में इजी नहीं हुआ तो स्प्लिट करने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। सो स्प्लिटिंग का प्रॉपर्टी आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपको ऐसा लगे कि नहीं, इस क्वेश्चन को, इस डिटर्मिनेंट को यदि स्प्लिट कर दिया जाए तो जो स्प्लिटेड डिटर्मिनेंट मिलेगा वो इजियर रहेगा, उसको इवैल्यूएट करना आसान होगा, तभी आप ये प्रॉपर्टी का यूज करो। अननेसेसरली यदि कभी भी एलिमेंट अगर सम के फॉर्म में है तो आप अननेसेसरली आप डिटर्मिनेंट को स्प्लिट मत करो। So this is called splitting property. So let us try to understand this property with the help of problem. So let me solve this question. Let us try to understand this property with the help of a board question. I have written here a question. Evaluate determinant A, B, C. A plus 2x, B plus 2y, C plus 2z, x, y, z. It is question of ISC 2018 of 3 marks, and it is also in NCERT, and it is also given in CBSE board examination. So common problem. Now we have to evaluate this determinant. Clear? So given determinant is A, B, C. A plus 2x, B plus 2y, C plus 2z, and here it is x, y, z. Now you can see the second row is in sum form. आप इस डिटरमिनेंट में देख सकते हो जो सेकेंड रो है, दिस इज सेकेंड रो। सो सेकेंड रो का एलिमेंट जो है वो सम के फॉर्म में है। सो व्हाट आई हैव सेड इन दिस स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी दैट इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर इन सम फॉर्म देन यू कैन एक्सप्रेस द डिटरमिनेंट आल्सो इन सम फॉर्म। सो आप इस डिटरमिनेंट को सम फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? डिटरमिनेंट, copy the first row as it is, A, B, C. In both the determinant, the first row will be same, A, B, C. Now second row का जो एलिमेंट है वो टर्म बाय टर्म है। सो पहले फर्स्ट डिटरमिनेंट में आप फर्स्ट टर्म को कॉपी करो, A, B, C, दिस फर्स्ट टर्म A, B, C, एंड कॉपी द, और सेकेंड डिटरमिनेंट में आपको सेकेंड टर्म को कॉपी करना है। सो राइट हियर 2x, 2y, 2z. Second term here 2x, here second term is 2y, here second term is 2z. So copy here. Now third row दोनों में सेम होगा because third row splitted नहीं है. Clear? Now so we have
splitted this determinant as a sum of two determinant. Now, as compared to this original determinant, these two splitted determinants are easier. Why? Directly you can see in this determinant the first row and the second row are identical. So identical row property, clear, or repetition property, value of this determinant will be 0. Plus, now here you can see in the second row 2 is common multiple. So according to common multiple property, you can take this common multiple as factor. So A, B, C, after taking 2 common from the second row will be X, Y, Z, and here also X, Y, Z. So again you can see in this determinant, this second row and third row are equal. So its value will be 0. So value of determinant is 0. So with the help of property, we can evaluate this determinant easily. By expansion also you will get the same answer, but that expansion method will take time. It will be time consuming. So use property as far as possible. Now let us discuss next property, that is property number 7. Property of invariance. Invariance property. Invariance property. Now this property is very important in determinant, because in most of the problem this property will be used. So we will try to learn this property with the help of different example. So what is invariance property? So let me write symbolically. Ri replaced with Ri plus lambda times Rj plus mu times Rk. So what is the meaning of this symbol? इस सिंबल का मतलब ये है कि आप रो 1 के एलिमेंट को, रो 1 को डिटरमिनेंट के डिटरमिनेंट के ith रो के एलिमेंट को आप रिप्लेस कर रहे हो किससे? ith रो का एलिमेंट प्लस लैम्डा टाइम्स jth रो का एलिमेंट प्लस म्यू टाइम्स kth रो का एलिमेंट. फॉर एग्जांपल सपोज आप आई लेते हो, सपोज आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को चेंज कर रहे हो, तो यू राइट हियर r1 इज रिप्लेस्ड बाय r1. नाउ मान लो सपोज को लैम्डा के जगह हम ले रहे हैं 1, so it will be r2, क्लियर, एंड लेट म्यू की जगह ले लेते हैं 1, so it will be r3. so इसका मतलब क्या होगा? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस ऑपरेशन. यहाँ पे लैम्डा क्या है? 1 लिए हैं, और म्यू क्या लिए हैं? 1 लिए हैं, और जे की जगह पे सेकंड रो और के की जगह पे थर्ड रो. नाउ इसका मतलब क्या हो गया कि आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो प्लस सेकंड रो प्लस थर्ड रो के एलिमेंट से रिप्लेस कर रहे हो, क्लियर? या फिर लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, देन आई विल गिव सम पार्टिकुलर एग्जांपल, देन इट विल बी बेटर फॉर यू. So what is the meaning of this symbol? Meaning elements of ith row is replaced by sum of element of ith row
ith row plus lambda times element of jth row plus mu times element of kth row. So what does it mean? What will be the effect after applying this operation? What will be the effect on the determinant? So there will be no change in value of new determinant. And that's why it is called property of invariance. It means determinant remains invariant, and that's what is called property of invariance. So let me recall again. See, this symbol represents that ith row is replaced with element of ith row plus lambda times element of jth row plus mu times element of kth row. यानी किसी रो के एलिमेंट में आप दूसरे रो के एलिमेंट के किसी भी रो के एलिमेंट में आप अदर रोज के एलिमेंट के मल्टीपल को इक्वी मल्टीपल को आप ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा. I think we should explain with the help of example. So let me write an example. Suppose determinant delta is a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3. Now if I will say that replace r1 with, suppose we are applying operation r1 is replaced with r1 plus say 5 times r2 minus 3 times r3. Clear? I have taken lambda equal to 5 and mu equal to minus 3. So what is the meaning of this symbol? फर्स्ट रो के एलिमेंट को रिप्लेस करना है फर्स्ट रो का एलिमेंट प्लस 5 टाइम्स सेकेंड रो का एलिमेंट माइनस 3 टाइम्स थर्ड रो का एलिमेंट. तो जब इस ऑपरेशन को अप्लाई किया जाएगा तो आपको जो डिटरमिनेंट मिलेगा उस डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो क्या हो जाएगा? आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हो फर्स्ट रो का एलिमेंट प्लस 5 टाइम्स सेकेंड रो का एलिमेंट माइनस 3 टाइम्स थर्ड रो का एलिमेंट. मतलब आप सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, थर्ड रो को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से. ना फर्स्ट रो में आप इसके 5 टाइम्स को ऐड कर रहे हो, इसके 3 टाइम्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? a1 प्लस 5 टाइम्स a2 माइनस 3 टाइम्स a3. इसके 5 टाइम्स को और इसके 3 टाइम्स को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके इसमें ऐड कर रहे हैं. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? b1 इसके 5 टाइम्स को ऐड कर रहे हैं 5b2, इसके 3 टाइम्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3b3. यहाँ क्या हो जाएगा? c1
प्लस इसके 5 टाइम्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं C2, इसके 3 टाइम्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं C3. Clear? And the second row will be as it is because only we are changing first row. Third row will be as it is. So यहाँ पे हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया. So ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिला, क्लियर, इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल होगा. क्लियर, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल ही होगा. दैट मींस कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों क्या होगा, ये इक्वल होगा. क्लियर. नाउ आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हो. क्यों हम बोल रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू इक्वल होगा, तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो. देखो, आप इसके पीछे जो इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ाया था, सम प्रॉपर्टी, आप उसका यूज करके आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट इक्वल है. कैसे? अगर हम लोग पिछले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो 3 टर्म्स के सम के बराबर है ना. तो आप इस डिटर्मिनेंट को 3 डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो. तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखो, इसको आप 3 डिटर्मिनेंट में आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो. इसको आप 3 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो यूजिंग द प्रीवियस प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी. सो फर्स्ट रो में यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट द फर्स्ट टर्म A1 B1 C1. नाउ सेकेंड डिटर्मिनेंट में सेकेंड रो एंड थर्ड रो एज इट इज रह जाएगा. A2 B2 C2 A3 B3 C3. नाउ सेकेंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में क्या लिखा जाएगा, ये सेकेंड टर्म. सो राइट हियर 5A2 5B2 5C2. एंड सेकेंड रो थर्ड रो एज इट इज रहेगा, ये कॉपी कर दो. A2 B2 C2 A3 B3 C3. नाउ थर्ड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में क्या लिखा जाएगा, जो थर्ड टर्म है, -3A3 -3B3 -3C3. एंड सेकेंड रो और थर्ड रो कॉमन रहेगा, A2 B2 C2 A3 B3 C3. ना अब आप देख सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में सब में 5 कॉमन मल्टीपल है. सो आप कॉमन मल्टीपल प्रॉपर्टी से आप इस कॉमन मल्टीपल को एज ए फैक्टर आप बाहर निकाल सकते हो. ये 5 यहाँ पे बाहर निकल गया. आप थर्ड डिटर्मिनेंट में देख सकते हो कि -3 कॉमन मल्टीपल है. सो इस -3 को आप बाहर निकाल सकते हो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन मल्टीपल. सो ये -3 बाहर निकल गया. नाउ यू कैन सी दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आर आइडेंटिकल. So identical row property, if 2 rows are identical, then value of determinant will be 0. So this determinant will be 0 because these two are equal. Now in the third determinant you can see first row and the third row are equal. So its value also will be 0. So you can see this whole determinant is equal to original determinant, this one. So by using this property, by using this operation, clear, value of determinant does not change. Now let me take another example. Suppose delta is A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. Now we have to apply operation R1 replaced by R1 minus R2. R1 minus R2. So what does it mean? इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे R1 के एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, R1 एलिमेंट माइनस R2 एलिमेंट. क्लियर? इसका मतलब है कि लैम्डा यहाँ पे हमने -1 लिया है और म्यू का वैल्यू क्या लिया है, 0 लिया है. अगर आप यहाँ पे i की जगह पे 1 ले लो तो R1
रिप्लेस बाई R1. नाउ प्लस लैम्डा के जगह पर हमने क्या ले लिया -1 एंड जे की जगह पे 2 ले लिया R2, म्यू की जगह पे 0 ले लिया तो 0 इंटू R3. सो यू कैन सी दिस ऑपरेशन इज सिमिलर टू दिस ऑपरेशन. क्लियर? ये इसी ऑपरेशन का ये एग्जांपल है. सो इस सिंबल का मतलब क्या हो गया कि आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हो फर्स्ट रो का एलिमेंट माइनस सेकेंड रो का एलिमेंट. तो इसको रिप्लेस करने पे कौन सा डिटरमिनेंट मिलेगा? फर्स्ट रो का एलिमेंट माइनस सेकेंड रो का एलिमेंट, मतलब A1 माइनस A2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 माइनस A2. नाउ फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो, तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2. फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो, तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2. नाउ सेकेंड रो एज इट इज रहेगा बिकॉज इसमें कोई आप ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हो. थर्ड रो में आप कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये एज इट इज रह जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट आल्सो विल बी सेम. वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट एंड वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी सेम. बोथ आर इक्वल. देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. Again you can explain in the same way using the sum property. Here first row is in the form of sum form, so you can write it as determinant. You can express this as sum of two determinant. So in the first row you will write here what? A1 B1 C1 first term. In the second row you will write same A2 B2 C2. Third row same A3 B3 C3. Here in the first row you write what? Minus A2 minus B2 minus C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3. This is some property. Now you can take this minus common outside, so it will be minus. The value of this determinant will be 0. Why? Because this first row and second row are equal, so this is equal to this original determinant. So by applying this property, value of determinant does not change. Let us take another example. Now, and whatever we are saying about the row, same is true for the column also. You can replace column also. Ith column can be replaced by ith column plus lambda times jth column plus mu times kth column. So same property is also true for column. And in first property I have said that whatever I am saying about the row, same is true for column also. Now take another example. Now suppose this time I want to use this property R1 replaced by R1 plus R2 plus R3. इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को रिप्लेस करना है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो प्लस एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो प्लस एलिमेंट ऑफ थर्ड रो. सो इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसका सेकेंड रो तो एज इट इज रहेगा. सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि आप फर्स्ट रो को चेंज कर रहे हो. सेकेंड रो एज इट इज रह जाएगा, थर्ड रो भी एज इट इज रह जाएगा बिकॉज आप थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं ला रहे हो. आप किस में चेंजेस ला रहे हो? फर्स्ट रो में. तो फर्स्ट रो में क्या चेंजेस ला रहे हो? फर्स्ट रो का एलिमेंट प्लस सेकेंड रो का एलिमेंट प्लस थर्ड रो का एलिमेंट. सो फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो प्लस थर्ड रो, सो इट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3. Here it will be B1 first row, second row, third row. B1 plus B2 plus B3, and here it will be C1 plus C2 plus C3. So value of this determinant and this determinant will be same. After applying this operation, value of determinant does not change. So इसका वैल्यू भी इसके बराबर रह जाएगा. आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो. इसको अगर आप 3 पार्ट में स्प्लिट करो, आप इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करो तो आप देखोगे कि ये 2 पार्ट 0 हो गया और ये ओरिजिनल पार्ट के इक्वल हो गया. सो नाउ sometime to save the time we apply this operation for 2 rows or 2 columns. Clear? मान लो कि हम ये प्रॉपर्टी जो है वो 2 रो को रिप्लेस करने में हम यूज कर रहे हैं.
क्लियर? जैसे ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है. नाउ लेट अस अप्लाई द ऑपरेशन R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R3. मतलब हम R1 के एलिमेंट को भी रिप्लेस कर रहे हैं और R2 के एलिमेंट को भी रिप्लेस कर रहे हैं. मतलब एक ही स्टेप में, सेम स्टेप में हम R1 के एलिमेंट को भी रिप्लेस कर रहे हैं और सेम ही स्टेप में R2 के एलिमेंट को भी रिप्लेस कर रहे हैं. तो इसको रिप्लेस करने के बाद क्या आएगा? आप R1 के एलिमेंट को कैसे रिप्लेस कर रहे हो? R1 माइनस R3, मतलब फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो. सो हियर इट विल बी A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, C1 माइनस C2. नाउ सेम टाइम्स आप R2 के एलिमेंट को भी रिप्लेस कर रहे हो, R2 माइनस R3, मतलब आप इस सेकेंड रो को भी आप चेंज कर रहे हो. किससे? सेकेंड रो माइनस थर्ड रो, मतलब R2 को आप रिप्लेस कर रहे हो R2 माइनस R3 से. सो हियर इट विल बी A2 माइनस A3, B2 माइनस B3, C2 माइनस C3 एंड थर्ड रो एज इट इज रहेगा. थर्ड रो में आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो. तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा. आप चाहो तो सम रूल्स आप इसको वेरीफाई कर सकते हो. वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस की सहायता से आप दो रो को एक ही बार में आप रिप्लेस कर रहे हो, आप एक ही स्टेप में दो रो को रिप्लेस कर रहे हो, तो आपको बहुत ही केयरफुल होना है. आपको ध्यान देना है कि जैसे फर्स्ट रो में, फर्स्ट स्टेप में आप R1 को रिप्लेस किया, दैट मीन्स कि इस रो को रिप्लेस किया. तो सेकेंड रो को जब आप रिप्लेस कर रहे हो तो उसमें फर्स्ट रो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. समझना कि हम क्या बोले? आप एक ही स्टेप में R1 को भी रिप्लेस करो और R2 को रिप्लेस कर रहे हो. तो R1 को रिप्लेस यानी फर्स्ट रो को रिप्लेस करने के बाद, फर्स्ट रो को चेंज करने के बाद, फर्स्ट रो को चेंज करने के बाद जब आप सेकेंड रो को चेंज कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि सेकेंड रो को चेंज करने में यहाँ पे फर्स्ट रो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. आप R2 को चेंज कर रहे हो तो इसमें R2 और R3 ही इन्वॉल्व हो सकता है, R1 इन्वॉल्व नहीं हो सकता है. जिस रो को आप पहले चेंज कर चुके हो, सेकेंड स्टेप में, सेकेंड से अदर रो में वो रो इस्तेमाल नहीं होगा. जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट रो को चेंज कर चुके हो और इसी स्टेप में आप सेकेंड रो को चेंज कर रहे हो तो इसमें फर्स्ट रो का इस्तेमाल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अगर इसमें फर्स्ट रो का इस्तेमाल करोगे तो फर्स्ट रो आप यहाँ से देखोगे, जबकि आपका फर्स्ट रो चेंज कर चुका है. आप अगर यहाँ पे मान लो सपोज करो यहाँ पे आप लिखते हो R2 माइनस R1, तो आप ये R1 का इस्तेमाल करोगे, जबकि आपके डिटर्मिनेंट में ये जो फर्स्ट रो है वो तो यहाँ पे चेंज कर चुका है. सो ये आप नहीं कर सकते. सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब आप एक ही स्टेप में दो रो को आप चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट रो चेंज करने के बाद जब आप अदर रो को चेंज कर रहे हो, सेकेंड रो को चेंज कर रहे हो, तो उसमें जिसका आप पहले चेंजेस कर चुके हो उसका इस्तेमाल नहीं करना है, उसको इन्वॉल्व नहीं करना है. जैसे यहाँ पे हमने R1 को चेंज किया और फिर उसी स्टेप में R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 को चेंज करते समय R1 का इस्तेमाल नहीं करना है. देखो आप यहाँ पे R2 और R3 का इस्तेमाल किए, यहाँ पे R1 का इस्तेमाल नहीं किए हैं. तो ये आपको ध्यान देना है. और एक बार में आप थ्री स्टेप तीनों रो को आप चेंज नहीं कर सकते हो. आप एक बार में मैक्सिमम दो रो या दो कॉलम को ही आप चेंज कर सकते हो. एक ही बार में आप चाहोगे कि तीनों रो को चेंज कर दे इस प्रॉपर्टी के हेल्प से, तो वो रॉन्ग होगा. आप केवल मैक्सिमम दो रो को ही आप एक बार में चेंज कर सकते हो. वो भी ध्यान देना है कि फर्स्ट रो को चेंज करने के बाद जब आप अदर रो को चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट रो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. नाउ इसमें इस प्रॉपर्टी में एक बात और ध्यान देना है. एक बात आपको और ध्यान देना है कि आप जिस रो के एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हो उस रो के एलिमेंट को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है. यू कैन सी हियर, अगर आप ith रो को
रिप्लेस कर रहे हो तो जो ith रो का जो एलिमेंट है उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ देख रहे हो ये 1 है। जिस रो को आप रिप्लेस कर रहे हो उस रो के एलिमेंट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसके लिए बैलेंसिंग करना पड़ेगा। सीधे एग्जांपल, सपोज डेल्टा इज ए डिटरमिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Now suppose we want to replace R1 by R1 lambda times R1 plus K times R1 plus lambda times R2. मान लो कि आप R1 के एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहते हो क्या, K टाइम्स R1 प्लस लैम्डा टाइम्स R2। तो रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप फर्स्ट रो को आप रिप्लेस करो किससे, K टाइम्स फर्स्ट रो एंड प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड रो। मतलब इसको K से मल्टीप्लाई करके इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके और तब ऐड कर रहे हो। सॉरी, तो ये हो जाएगा K A1, इसको K से मल्टीप्लाई किए और सेकेंड रो को लैम्डा से प्लस लैम्डा A2। यहाँ भी इसको K से, K B1 फर्स्ट रो को K से और सेकेंड रो को लैम्डा से प्लस लैम्डा टाइम्स B2। फर्स्ट रो को K से एंड सेकेंड रो को लैम्डा से, एंड सेकेंड रो विल बी एज इट इज बिकॉज सेकेंड रो में आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ फर्स्ट रो को चेंज कर रहे हो। थर्ड रो कॉपी एज इट इज, थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे अब ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल नहीं होगा। अब ये इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जिस रो के एलिमेंट को आप रिप्लेस कर रहे हो उसके कोएफिशिएंट को उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जिस रो को आप रिप्लेस कर रहे हो उसका एलिमेंट को किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है। बट अगर आप करते हो, जैसे यहाँ पे आप R1 को रिप्लेस कर रहे हो तो आप R1 के एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर दियो, जबकि नियम कहता है कि आप जिस रो के एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट आप यहाँ पे K से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आपको ये दोनों डिटरमिनेंट को इक्वल बनाने के लिए आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर? और बैलेंस कैसे होगा, आप इसको 1/K से डिवाइड कर दो, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उससे आप यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तब ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि डोंट मल्टीप्लाई द रो which you want to change, but in case if you are multiplying that row by a number, then to balance it divide the whole determinant by that number. क्लियर? तो आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करके भी आप चाहो तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बट आपको बैलेंस करना होगा। क्लियर? कुछ क्वेश्चन में ऐसा जरूरत होता है कि नहीं हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर दें और तब हम उसको रिप्लेस करें, तो कर सकते हैं, बट उस नंबर से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी कहलाता है। क्लियर? सॉरी, दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। Now, what is the advantage of this property? Why it is so important in determinant? See, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप किसी रोज के एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, अपने जरूरत के अनुसार उसको आप चेंज कर सकते हो ताकि उसका एक्सपेंशन इजी हो जाए। मेनली क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम किसी रो के एलिमेंट को जीरो बनाने में हम यूज करते हैं, क्योंकि इन द सेकेंड क्लास आई हैव सेड, सॉरी इन द थर्ड क्लास आई हैव सेड दैट कि जिस डिटरमिनेंट में जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो उस रो या कॉलम से एक्सपेंशन करना आसान हो जाता है। तो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ला सकते हो। सो बेसिकली ये प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट